Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am Jay Arora and I'm recently pursuing my masters at IIT Delhi in construction technology and management. After receiving such a huge and such a beautiful response on the two videos that I have uploaded related to COPE, I thought of coming with another video, and in this video I will be addressing every query that the student asked me via comment section, via DM me on Instagram. Students still have many queries related to the decision like accept and freeze, retain and wait, reject and wait, what to do, what not to do, what will result into what is the process of rejecting, what is the process of retaining. They have frequently asked queries and I will be addressing all these queries in this video, and I am definitely sure after watching this video you will be in a position to take the decision on your own, be it accept, be it reject, be it freeze, because you will be clear with your mind that what all these decision exactly means and what are the consequences of this decision. So please watch this video till the end, and if you still have any query, please feel free to ask me in the comment section. So एग्जाम्पल से समझना बहुत ज्यादा इजी होता है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज देयर यू अप्लाइड फॉर 3 IITs, ओके, IIT A, IIT B and IIT C. In IIT A, while you filled the form of IIT A, you gave the preference order of A1, A2 and A3. That means A1 was the most desirable choice for you, then A2, then A3. This is in the right order. Similarly for IIT B, you filled B1, B2 and B3. Similarly for IIT C, which is the last form, you filled C1, C2 and C3. These are the 3 forms of IITs, and in every IIT you just gave 3 preferences in your desirable order. Now suppose the COPE round 1 results are out. Then suppose you got 3 offers. IIT A, A3 branch, you got the offer from IIT A as the A3 branch, which was the least desirable for you. From IIT B, you got the B2 branch, that was the second preference for you. Similarly, from IIT C, you got the C2 branch, that was also the second desirable branch for you at IIT C. So these are the 3 offers. Now you are confused. So how will you decide which offer to select? See, you should not accept and freeze. First of all, in the first round you should never accept. You can always explore yourself, so don't accept. Suppose what you do now, suppose by chance, I am not recommending you to accept, but suppose you accept, suppose say IIT C and C2 branch. Suppose you accept this. That means if you accept and freeze IIT C C2 branch, then you will be out of the complete process of COPE. You will not be eligible to participate in round 2, 3, 4, 5 or additional rounds as well. You will be out of the COPE process. फिर इसके बाद आपको IIT C अलॉट हो चुका होगा और C2 ब्रांच आपके पास आ चुकी होगी. That means you will have to now pursue your masters in this IIT with this particular branch. I hope accept and freeze is clear to you. Accept and freeze करने के बाद आपका COPE पोर्टल का कोई काम नहीं है. आपको IIT मिल चुका है, आपको ब्रांच मिल चुकी है, आप सेलिब्रेट कर सकते हो. इसके ऊपर की जो प्रीफरेंसेस थी, जैसे आपको C2 मिला, बट आपने C1 भी एक प्रीफरेंस दी थी जो C2 से ऊपर थी, आपकी हायर प्रीफरेंसेस थी, वो अब आपको मिलने का चांस बिल्कुल खत्म हो चुका है. यू आर अलॉटेड द C2 ब्रांच डेफिनेटली. अब आपको C1 मिलने का कोई स्कोप नहीं है. दैट मीन्स व्हेन यू एक्सेप्ट एंड फ्रीज, you are not eligible for higher preferences. Please keep this in mind. After you accept and freeze, you have to visit the website of the individual IIT, or from my experience, the IITs will be mailing you, the respective IIT will mail you the procedure of filling the fees amount and the deadline of filling the or depositing the fees. So this is about accept and freeze. Suppose now you retain, now instead of accepting, I am considering the condition 2, that in round 1 what do? You retain IIT B and branch B2, retain and wait. That means, see, आप एक ही ब्रांच को रिटेन कर सकते हैं, एक ही ब्रांच को एक्सेप्ट कर सकते हैं. रिजेक्ट तो बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी. आपने कोई भी डिसीजन ले लिया तो बाकी ब्रांचेस जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी. तब आपने क्या किया, IIT B की B2 ब्रांच को क्या कर लिया, आपने रिटेन एंड वेट कर लिया. इसका मतलब ये ऑफर आपने अभी छोड़ा नहीं. जब आपने इसको रिटेन कर लिया तो बाकी ऑफर्स जो आए थे आपके पास, IIT A की A3 ब्रांच और IIT C की C2 ब्रांच,
वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ये बात अपने दिमाग में बांध लीजिए कि वो जो ऑफर्स इसके साथ आए थे, आपने जो रिटेन किया, उसके अलावा जो ऑफर्स आए थे वो आपके रिजेक्ट हो चुके हैं, और रिजेक्टेड ऑफर्स कभी भी दोबारा नहीं आते हैं। दैट मीन्स इन एनी राउंड यू विल नॉट गेट IIT A A3 अगेन, सिमिलरली IIT C C2 अगेन, you will never get, you just have IIT B B2 branch with you now। बट आपने दो IITs रिजेक्ट कर दिए, IIT A का A3 रिजेक्ट कर दिया और IIT C का C2 रिजेक्ट कर दिया। आपने रिजेक्ट सिर्फ ऑफर किया है, IIT नहीं किया है। रिजेक्ट ये ऑफर करने का मतलब है आप अभी भी हायर प्रेफरेंसेस के लिए एलिजिबल हैं। यही डिफरेंस होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट में, ठीक है। आपने रिजेक्ट किया नहीं, बट आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने एक ऑफर रिटेन कर लिया। इसका मतलब अब नेक्स्ट राउंड में आपको IIT A से A2 ऑफर भी आ सकता है, IIT A से A1 ऑफर भी आ सकता है, सिमिलरली IIT C से C1 ऑफर आ सकता है, C2 नहीं आएगा। ऐसे ही IIT A से A3 ऑफर अब दोबारा नहीं आएगा आपके पास किसी भी राउंड में। तो अगर रिजेक्ट हो गया है ऑफर तो इट इज रिजेक्टेड, इट विल नेवर कम बैक टू यू अगेन। मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग दिस। अब आपने क्या किया, IIT B का B2 राउंड जो B2 ब्रांच जो है वो रिटेन और वेट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में आप आए, एक ऑफर को एक IIT से 2 बार रिटेन किया जा सकता है। दैट मींस अगर IIT B का B2 ऑफर सिर्फ 2 बार ही रिटेन किया जा सकता है, सिमिलरली IIT B का B1 ऑफर होता तो वो अलग से 2 बार रिटेन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोप राउंड 2 में। अब आपने कोप राउंड 1 का डिसीजन ले लिया और क्या किया आपने, IIT B का B2 ब्रांच को रिटेन एंड वेट कर लिया। अब आप आ गए कोप के सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में आपने जब लॉग इन करके देखा तो आपके पास IIT B का B2 ही है, IIT B का कोई ब्रांच अपडेट नहीं हुआ है। रिटेन एंड वेट से एक चीज याद रखना कि आपने B2 को रिटेन एंड वेट किया है, तो ये हो सकता है कि जब आप सेकेंड राउंड में पहुंचे तो आपकी ब्रांच जो है वो अपडेट हो जाए। जब आपकी ब्रांच अपडेट हो जाएगी तो जो पिछला वाला ऑफर था आपके पास B2 वाली ब्रांच, वो अब नहीं रहेगी। अब आपके पास अपडेटेड ऑफर आ गया, नया ऑफर आ गया है। ये होता है रिटेन एंड वेट। रिटेन एंड वेट आप क्या कर रहे हो, बेसिकली रिटेन एंड वेट का मतलब है कि आप उस IIT को अपने पास रखना चाहते हो और उसके ऊपर की ब्रांचेस को आप कंसीडर करवाना चाहते हो। जब आपने अपने प्रीफरेंस फॉर्म में जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने B1 B2 B3 डाला था, अभी आपको B2 मिला है, तो डेफिनेट सी बात है आप B1 ज्यादा चाहते हो। तो आपको अगर सेकेंड राउंड में B1 मिल रहा है रिटेन के बाद तो आप निराश नहीं होगे, यू विल बी हैप्पियर, यू विल बी मैरियर। तो अब हमने क्या किया, सेकेंड राउंड में अब आपके पास क्या आता है ऑफर, IIT B से B2 वाला ऑफर आता है, सेम ऑफर आता है, अपडेट नहीं हो रहा, आपका स्कोर इतना ज्यादा भी नहीं है कि आपको IIT B से B1 ब्रांच मिल जाए, ठीक है। अभी भी आपके पास IIT B से B2 है और IIT A से आपके पास अपडेट होकर ऑफर आ गया है A2। मैंने आपको बताया था, आपने A3 तो रिजेक्ट कर दिया तो A3 तो नहीं आ सकता था दोबारा, लेकिन अपडेटेड ऑफर A2 आपके पास अब आ चुका है। तो आपके पास केवल ये 2 ऑफर्स हैं। IIT C से आपके पास कोई भी ऑफर नहीं आया है, ऐसा नहीं है आ नहीं सकता था, बट आपका गेट स्कोर शायद इतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए आपके पास केवल 2 ऑफर्स हैं। अब क्योंकि आपने IIT B का B2 ऊपर एक बार रिटेन कर लिया है, इस राउंड में भी आपके पास IIT B का B2 आया है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, दोबारा से रिटेन कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सेकंड टाइम रिटेन कर रहे हो आप सेम ऑफर को और सेम IIT से, B2 ब्रांच है और IIT भी B है, तो ये सेकंड टाइम रिटेन कर रहे हो, तो ये लास्ट टाइम है जब आप रिटेन कर रहे हो। जब आप नेक्स्ट बार जाओगे, नेक्स्ट राउंड में जाओगे, अगर आपके पास दोबारा से यही ऑफर आता है तो आप इसको रिटेन नहीं कर पाओगे, फिर आप सिर्फ इसको रिजेक्ट कर पाओगे या एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम एक और सिनेरियो कंसीडर करते हैं। क्या सिनेरियो कंसीडर करते हैं, आपके पास सेकेंड राउंड में IIT B की B2 की जगह क्या आती है, IIT B का B1 आता है और IIT A का A2 ही आता है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, IIT B का अगर आपने B1 अब रिटेन कर लिया तो आपने ये पहली बार रिटेन किया है, क्योंकि आपने IIT तो सेम था लेकिन नई ब्रांच है, तो आपने वो फर्स्ट टाइम रिटेन किया है, तो आप उसको नेक्स्ट राउंड में एक और बार रिटेन कर सकते हो। लेकिन B2 होता तो आप इसको दोबारा रिटेन नहीं कर पाते। अब देखो, जब आप इसको रिटेन करोगे, IIT B वाले ऑफर को रिटेन करोगे, तो IIT A का जो A2 है वो रिजेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो जब वो रिजेक्ट हो रहा है, सो दैट ऑफर विल नेवर कम बैक टू यू अगेन। IIT A का A2 से आप हाथ धो बैठोगे, A3 से आपने ऊपर ही हाथ धो बैठा, तो अब IIT A का A1 मिलने का चांस बचा है और IIT C का C1 मिलने का चांस बचा है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं हम कोप के राउंड 3 में। मैं मान के चल रहा हूं आपने सेकंड राउंड में IIT B का B2 जो है वो रिटेन किया था। अब आप आते हो कोप के राउंड 3 में। 2 सिनेरियो कंसीडर करेंगे। पहला, IIT B का B2 ही ऑफर आया आपके पास, IIT A का A1 आ गया और IIT C का C1 आ गया। A2 और C2 तो आ ही नहीं सकते थे, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप रिजेक्ट करोगे तो क्यों आपको कोई दोबारा से ऑफर देगा सेम, ठीक है। तो IIT B का B2 आपने क्योंकि रिटेन कर लिया था ऑलरेडी, अब इसके आगे आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिखेंगे, 2 डिसीजन दिखेंगे, या तो एक्सेप्ट
एंड फ्रीज या फिर रिजेक्ट एंड वेट। सिमिलरली IIT ए का A1 है आपके पास, तो ये आप अभी रिटेन भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। सिमिलरली IIT सी का आप जो C1 आया आपके पास, ये आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिटेन भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। आपने ये दोनों ऑफर्स लास्ट के एक बार भी रिटेन नहीं किए, यू कैन रिटेन देम 2 times मोर। बट IIT B का B2 है, ये अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ये रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। रिटेन नहीं कर पाओगे, एक और राउंड तक खींच के नहीं ले जा पाओगे। अब आपने जो भी करना है अब आप कर सकते हो। इतना प्रोसेस आपको आई होप क्लियर होगा। नाउ थर्ड राउंड का सेकंड सिनेरियो क्या है। मैंने माना थर्ड राउंड के सेकंड सिनेरियो में आपको क्या मिला, ये नहीं मिला सपोज, तो आपको क्या मिला, IIT B का B1 ऑफर आया आपके पास इस राउंड में, और IIT A का A1 आया, IIT C का C1 आया। अब आपके पास तीनों IITs की अपनी डिजायरेबल ब्रांचेस हैं, सबसे हाईएस्ट प्रीफरेंस वाली ब्रांचेस आई हैं, ठीक है। अब आप IIT B के B1 को दोबारा रिजेक्ट भी कर सकते हो, रिटेन भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास राउंड 3 में पहली बार आया है। आई होप आपको क्लियर है। रिजेक्ट, अगर आपने कोई भी ऑफर रिटेन कर लिया, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्टेड ऑफर कभी दोबारा नहीं आता, लेकिन उसके हायर प्रीफरेंसेस जो है वो आपके पास दोबारा लौट कर आ सकते हैं। दैट इज वेरी फीजिबल, ठीक है। और एक और चीज, राउंड 5 जो होता है उसमें आपके पास रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ये आपके मेन राउंड्स हैं। इसमें आपको 5th राउंड के बाद और कोई राउंड ही नहीं होता है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप रिजेक्ट ही कर सकते हैं या एक्सेप्ट ही कर सकते हैं। तो आपने रिजेक्ट कर दिया, वो ऑफर दोबारा नहीं आएगा 5th राउंड में। इसके बाद एक्सेप्ट कर लिया अगर आपने, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको उसकी फीस फिल करनी पड़ेगी और वो इंस्टीट्यूट आपको फाइनली अलॉट हो चुका होगा, ठीक है। आप स्टूडेंट्स के कुछ और बहुत जनरल FAQs आ रहे थे, जैसे कि व्हाट इफ आई फॉरगॉट टू लॉग इन एट कोप फॉर एनी राउंड। अगर आप कोप पे किसी पर्टिकुलर राउंड में लॉग इन नहीं करते हैं, सपोज 28 से 28 मई से 30th मई तक का टाइम आपको दिया गया कोप राउंड 1 के लिए, अगर आप इसमें लॉग इन नहीं करते हैं या आप कोप राउंड 2 में लॉग इन नहीं करते हैं या 3 में लॉग इन नहीं करते हैं, तो आपके जितने भी ऑफर्स आए थे वो सारे के सारे रिजेक्टेड माने जाएंगे, ठीक है। उनमें से कोई अपने आप एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई अपने आप रिटेन नहीं होगा, क्योंकि रिटेन और एक्सेप्ट आपके डिसीजन होते हैं, बट रिजेक्ट तो आपने नहीं लॉग इन किया तो रिजेक्ट हो जाएगा सब कुछ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कोप राउंड 1 में आपको 3 ऑफर्स आए थे, A से A3, B से B2 और C से C2 आया था, ठीक है। तो अगर आपने पोर्टल ही नहीं खोला तो ये तीनों ऑफर्स आपके गए, दे विल नेवर कम बैक टू यू, ठीक है। और इसके अलावा अगले राउंड में ये 3 तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन इसके अपडेटेड वाले आ सकते हैं। दैट मींस A3 की जगह A2 तो आ सकता है, A1 भी आ सकता है। ऐसे ही IIT B से B1 आ सकता है और IIT C से C1 आ सकता है आपके पास। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज, व्हेन विल आई बी कंसीडर्ड फॉर हायर प्रीफरेंसेज एट कोप? इफ यू रिजेक्ट एंड वेट एंड इफ यू रिटेन एंड वेट, देन ओनली यू विल बी कंसीडर्ड फॉर हायर प्रीफरेंसेज। रिटेन एंड वेट में आप उस प्रीफरेंस को लिए भी कंसीडर किए जाओगे जो आपने लॉक किया है, रिटेन किया है, और उसके ऊपर वाली भी, लेकिन रिजेक्ट कर दिया तो सिर्फ ऊपर वाली प्रीफरेंसेज के लिए कंसीडर किए जाओगे। इफ यू एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर हायर प्रीफरेंसेज। कैन आई रिटेन 2 ऑफर्स एट अ टाइम? ये नेक्स्ट क्वेरी है। तो नहीं, सिर्फ एक ही ऑफर रिटेन किया जा सकता है। आप एक राउंड में एक ही डिसीजन ले सकते हो, एक ही ऑफर को रिटेन कर सकते हो, एक ही ऑफर को फ्रीज कर सकते हो, लेकिन रिजेक्ट तो बहुत सारे ऑफर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सारे ऑफर्स भी रिजेक्ट हो सकते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। कैन आई विथड्रॉ आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर? या डेफिनेटली यू कैन विथड्रॉ आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर, दैट्स पर्सनली योर चॉइस। बट अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको एक डेडलाइन दी जाएगी कि आपको फीस सबमिट करनी है या कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। अगर आपने फीस जमा कर दी है, तो फीस जमा करने के बाद अगर आप विथड्रॉ करते हो तो आपका उस फीस में से कुछ अमाउंट कट हो जाएगा और बाकी अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। कितना कट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज टू कॉलेज। जैसे अगर आप किसी IIT की वेबसाइट पे विजिट करो तो आपको पता चलेगा कि उनकी रिफंड पॉलिसी क्या है, कि अगर आपने अगर 10,000 पे किया है तो उसमें से वो 8,000 रिफंड कर देते हैं, 2,000 काट लेते हैं। या IIT BHU की, जैसे IIT BHU की रिफंड पॉलिसी मेरे को पता है उसकी क्या होती है। जैसे अगर 30,000 उसकी फीस है, नेक्स्ट ईयर तक ये थी, 30,000 अगर उसकी फीस है तो 20,000 रुपए वो आपको रिफंड करेंगे, 10,000 रुपीज वो काट लेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपको विथड्रॉ करना है ऑफर तो आप सोच समझ के करिएगा, फीस सोच समझ के पे कीजिएगा और रिफंड पॉलिसी पहले से पता लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेरी इज, विल ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैव सेम नंबर ऑफ राउंड्स? नो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर राउंड में कोई IIT पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। जैसे 5 राउंड्स हैं, हो सकता है थर्ड राउंड में IIT दिल्ली पार्टिसिपेट ही ना करे, हो सकता है फर्स्ट राउंड में IIT मंडी पार्टिसिपेट ही ना करे, हो सकता है 5th राउंड में कोई IIT पार्टिसिपेट ना करे, उनकी सीट्स ऑलरेडी फुल हो गई हो या कोई प्रोसेस चल रहा हो बीच में, कोई बीच राउंड में भी ऐसा हो सकता है कि IIT पार्टिसिपेट ना करे। बट अगर नहीं करेगी तो कोप पोर्टल पे आपको वो एडवांस में बता दिया जाएगा कि राउंड नंबर 3 में X IIT is not going to participate, so that you are already mentally prepared.
ठीक है। नेक्स्ट FAQ इज इफ अ कैंडिडेट डज नॉट एक्सेस ड्यूरिंग लास्ट मेन राउंड व्हाट विल हैपन। चाहे आप लास्ट में ना एक्सेस करें, चाहे आप फर्स्ट में ना एक्सेस करें कोप पोर्टल को, सेम चीज होती है, सारे ऑफर्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। I hope the complete process of decision making in COPE is clear to you, and in any round of COPE now you will not hesitate to take any decision because you are familiar with the decision. Retain का क्या पर्पस होता है, रिजेक्ट का क्या पर्पस होता है, एक्सेप्ट का क्या पर्पस होता है। अब आपके पास जो भी ऑफर्स हैं, बस आपका यही काम रहेगा कि उन ऑफर्स को एनालाइज करो और बेस्ट ऑफर को रिटेन करो या बेस्ट ऑफर को एक्सेप्ट करो और सबसे खराब ऑफर्स को रिजेक्ट करो। यह आपका काम रहेगा अब इसमें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, डू सब्सक्राइब द चैनल।